Hello everyone. Today I am going to explain about air. And this is our fourth chapter of a Geography NCERT book. So in our first chapter, we studied about the atmosphere when we discussed about the biosphere, and also we learn about the different type of components, means the lithosphere, the biosphere, the atmosphere. In the atmosphere we know the surrounding area where we get the air particle is called the atmosphere. In other sentence we can say our atmosphere is surrounded by a huge blanket of air is called atmosphere. So atmosphere means कि जहाँ पर हमको क्या मिलती है, एयर मिलती है. If we studied about the huge blanket, either the place where we get the air, that is called the atmosphere. So no doubt we studied about different type of gases in the atmosphere. So this particular chapter is related to the air. Air means atmosphere. Because what is the definition of atmosphere? Our atmosphere is surrounded by a huge blanket of air. मतलब जहाँ पर हमें बहुत सारी एयर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. या जिस भी प्लेस में हमको एयर मिलती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. जस्ट लाइक लिथोस्फीयर मीन्स अ लैंड पार्ट, हाइड्रोस्फीयर मीन्स अ वाटर बॉडीज. सो उसी तरीके से जहाँ पर हमें एयर मिलती है दैट इज कॉल्ड अवर एटमॉस्फेयर. So first what we studied in a part of atmosphere or including in atmosphere or air, हम उसके अंदर में क्या चीज़ें पढ़ेंगे. So firstly we studied about the composition of the atmosphere. Composition means it means संरचना और रचना. Composition means रचना या संरचना या किसी चीज़ का बनना. So composition of atmosphere, it means what are the ingredients included in the atmosphere. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं या फिर एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर के बना है. सो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट द गैसेस. So a huge part or the maximum part जो गैस का हमको मिलता है that is nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen are the two gases which make up the bulk of the atmosphere. Bulk means ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमको ये टू गैसेस मिलती हैं. that is the one is nitrogen and second is the oxygen. Then the carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen are found in a lesser means less quantities. These gases are also important. So ये हमें किन मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमें लेस क्वांटिटी में मिलती हैं. Then apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. You might have seen if our mother after 10 days or 15 days she needs to clean the sofa or the corner or the windows. Why she needs to clean? Because उसमें dust जम जाती है. From where we get the dust? So is dust particles present in the एटमॉस्फेयर. आपने देखा होगा कि जब कई बार ऐसे होता है कि हम किसी भी चीज़ को साफ़ नहीं करते, क्लीन नहीं करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम हम अगर उसे टच करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं, डस्ट पार्टिकल्स मिलती हैं. सो ये जो डस्ट पार्टिकल है ये कहाँ से आ जाती, फ्रॉम वेयर इट कम्स. सो इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो ये सब कुछ मिल करके हमारा क्या बनाती हैं, क्रिएट अवर एटमॉस्फेयर. मीन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
then the helium, oxygen, argon, hydrogen, then ozone. These all gases, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं. जस्ट पार्टिकल, वाटर बॉडीज मीन्स ऐसे पूरा नहीं, वाटर वेपर के फॉर्म में हमें क्या होते हैं वो मिलते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. एंड हियर इट इज़ गिवन द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमको मिलती हैं. Then next we will discuss about the different type of the layers. Means हमारा जो atmosphere है, our atmosphere is divided into five layers. ये layers हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, important है. Why it is important, वो हम देखेंगे कि क्यों हमारे लिए ये क्या है, important है. And already आपने सुना होगा and you know it in the previous classes. आपने पढ़ा होगा about this ozone layer. ओजोन लेयर क्या करती है, वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो सन से आती हैं. सो इसी तरीके से हमारे ये जो एटमॉस्फेयर है ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स से क्या होता है, मीन्स आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर, दिस 5 layers. So this layer is also very important. So first layer is the troposphere, then second is stratosphere, the third is mesosphere, then fourth is thermosphere, then fifth is exosphere. So ये जो layers हैं या ये जो spheres हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है. So same, our atmosphere is divided into 5 layers. Starting from Earth's surface. Starting from Earth's surface means आप यहाँ से देखिए कि ये जो हमारा है ये क्या है, this is our Earth. तो अब ये जो हमारा ये जो हमारा अर्थ है इसके आसपास जो भी एयर का जो भी एरिया होगा दैट इज कॉल्ड अवर एटमॉस्फेयर. एंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू अपवर्ड्स ये जो है वो क्या होती हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर्स है ये ऊपर की तरफ जाती हैं. देन the first layer is the troposphere. So जो बहुत important चीज़ है आपको इसमें क्या याद रखनी है, that is the height of the atmosphere, this troposphere means the 5 layer में से जो आपकी फर्स्ट लेयर आपकी आएगी दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर whose average height is 13 kilometer. And the second thing, the troposphere is the layer in which the air we breathe, जहाँ हम सांस लेते हैं. मीन्स एटमॉस्फेयर, अभी हम एकदम आसमान में तो नहीं चले जाते हैं, हम नीचे रहते हैं. सो द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर. ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनन, जो भी हमें अपने वेदर में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं या जो भी ऑकर होती हैं चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, वो सारी सब कुछ किसके अंदर में होती हैं, कहाँ पर होती हैं, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. देन नेक्स्ट द सेकेंड लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर. नाउ स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो कहाँ तक होती है, दिस अप टू 50 किलोमीटर्स. मीन्स फर्स्ट लेयर दैट इज 13 एंड द सेकेंड लेयर इज द 50 किलोमीटर्स. देन थर्ड लेयर इज द मीसोस्फेयर एंड इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है, अप टू 80 किलोमीटर्स. द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फेयर एंड इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, बिकॉज हमारी जो थर्ड लेयर है वो अप टू 80 किलोमीटर्स, सो 80 to 400 किलोमीटर्स. एंड द लास्ट लेयर मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द एक्सोस्फेयर, ओके, विच हैज़ वेरी थिन एयर, जहाँ पर जो एयर होती है वो बहुत कम होती है और इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. मीन्स 400 किलोमीटर से बियॉन्ड ऊपर तक पूरा चला जाएगा, वो आपका कहलाता है आपका एक्सोस्फेयर, मीन्स बहुत ज़्यादा ऊपर. सो ये लेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनसे ही मिलकर के हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर बनता है.
The next, weather and climate. It is also very important. So what is weather? First, weather is the hour to hour changes और डे टू डे कंडीशन. ठीक है, अभी देखिए आप, जो हमारा वेदर है वो क्या होता है, मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है. सो वेदर आवर टू आवर या डे टू डे मीन्स एक दिन में हमको 2 से 3 बार, कई बार ऐसा होता है कि we can feel when we get up in the morning that time our temperature or weather is cold, little bit cold. बट जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वी फील वार्म और हॉट. क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारा जो वेदर होता है वो क्या होता है, आवर टू आवर, आइदर डे टू डे कंडीशन मीन्स चेंज होता रहता है. इन नाइट और इन इवनिंग वी कैन फील द वेदर चेंज. जो हमारा वेदर है वो चेंज हो जाता है. सम टाइम आप देखे होंगे ऐसे कि मॉर्निंग में हम उठते हैं तो नॉर्मल होता है, फिर अचानक ही बारिश हो जाती है, हवा चलती है, फिर बारिश हो गई, फिर धूप निकल आई. हाँ, तो ये इस तरीके की जो कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं वेदर बोलते हैं. मतलब जो वेदर है वो बार बार क्या होता है, दिन में कई बार क्या होता है, चेंज होता है. इन विंटर सीजन जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है. लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है हमको थोड़ी गर्मी, हल्की सी गर्मी महसूस होती है. नाइट फिर से क्या होता है, ठंडी हो जाती है. इन अ समर सीजन व्हेन यू गेट अप दैट यू नो कि आपका जो वेदर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होता है. फिर जैसे जैसे धूप होती है या दिन निकलता है तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ने लगती है. सो what is the definition of a weather? Weather is the hour to hour or day to day condition of the atmosphere. मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो डे टू डे या आवर टू आवर जो चेंजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं वेदर. एंड व्हाट इज द क्लाइमेट? क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशंस. वेदर कंडीशन हाउ वी कैन से. अभी देखिए आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो वेदर है वो क्या है, वेदर मीन्स आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन. मतलब जो दिन प्रतिदिन जो भी चेंजेस आते हैं या घंटों में जो भी चेंजेस आते हैं, अगर हम उन्हें एक लॉन्ग पीरियड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कंडीशन को मीन्स फॉर अ लार्ज पीरियड. तो इस लार्ज पीरियड ऑफ अ लार्ज एरिया यानी कि बड़े एरिया में. लेकिन जो कंडीशन वेदर होता है ये क्या होता है, इन अ स्मॉल कंडीशन होती है. जैसे आपने बिग सिटीज में अक्सर देखा होगा इन आवर एरिया ऑल्सो कि क्या होता है कि कहीं कहीं पे बारिश होती है, कहीं कहीं पे नहीं होती. अब अगर बारिश हो जाएगी तो वहाँ का वेदर क्या होगा, चेंज हो जाएगा. लेकिन जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ का वेदर चेंज नहीं होगा. लेकिन जो क्लाइमेट होता है इट्स अ लार्ज एरिया एंड अ लार्ज पीरियड. हाउ वी कैन से कि अगर समर सीजन होगा तो हर जगह के लिए क्या होगा, समर सीजन होगा. ठीक है, अगर विंटर सीजन होगा तो हर जगह के लिए क्या होगा, विंटर सीजन. अगर रेनी सीजन होगा तो हर जगह के लिए क्या होगा, रेनी सीजन होगा. बट इट्स डिपेंड ऑन द latitude and longitude condition और from where we situated. sometime हम इक्वेटर में हैं और नॉर्दर्न पार्ट में हैं और सदर्न पार्ट में हैं, तो ये भी एक डिपेंड करती है कंडीशन हमारे एरिया पे बारिश होने के लिए, आइदर विंटर के लिए और समर के लिए. बट इट डजंट मीन्स कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाएगा. अगर क्लाइमेट है, हॉट सीजन है, तो हर जगह पे आपको क्या होगा, गर्मी ही फील होगी. अगर रेनी सीजन है तो हर जगह पे आपको बारिश ही मिलेगी. अगर विंटर सीजन है तो हर जगह पे ठंडी ही होगी. बट कहीं कहीं पे ज्यादा ठंड होगी, कहीं कहीं पे कम ठंड होगी. लाइक इन आवर इंडिया इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो नॉर्दर्न पार्ट मीन्स हिमालयन रीजन में आपको ज्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी. ठंड के टाइम में वहां पर तो हमेशा स्नोस होती है, बट गर्मी में थोड़ी कम होती है, लेकिन ठंड में बहुत ज्यादा हो जाती है. और हमारे एरिया में हो सकता है कि उससे थोड़ी कम होगी. तो क्लाइमेट is a large period and a large area, and weather is hour to hour and day to day condition. वेदर इज अ शॉर्ट टाइम, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टाइम. व्हेन क्लाइमेट में जब चेंजेस होता है या क्लाइमेट जब ऑकर होता है तो इसमें हमें सीजन चेंजिंग के लिए देखने के लिए स्पेशली मिलता है. जैसे कि समर के बाद आपका विंटर रेनी का आना, रेनी सीजन के बाद में विंटर सीजन का आना, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. एंड वेदर में क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में हम उठे तो हमें थोड़ी सी गर्मी हुई, फिर उसके बाद में और ज़्यादा गर्मी, रात में थोड़ा सा
ठंड हुआ. And the next concept we will discuss in my next video. Till that, take care.